Hello, my intelligent friends. Welcome to More Academy. Now, today I am going to consider two questions of Simple Cash Book. In yesterday's lecture, I have already considered the discussion of Simple Cash Book and at the same time, one problem we have solved. Now, today we are going to solve two questions. चलो then, let us start quickly. पहले क्या बोला है देखो, enter the following transactions in Simple Cash Book of Mrs. Saurabh Traders. Enter the following transactions in Simple Cash Book of Mrs. Saurabh Traders. So we are writing in the books of Saurabh Traders, and then they have told you started business with cash. So I am going to follow our yesterday's method. First of all, I will consider as if these transactions would have been recorded by a small business who is not having subsidiary books, and then we will try to consider it that the same transaction done by a large business, how it will be considered. Okay, so let me consider if you would have been doing these transactions as a small businessman, then what would have happened? Then you would have had first of all a journal, and then you would have had another book that is called as ledger, and then you would have passed the entry in the journal that is cash account debit because cash is coming in, and घर से पैसा लेके आया है, that means it should be considered as capital account. So cash account debit to capital account would have been the entry if we would have considered the situation of started business, and we would have recorded it in the books of journal or in journal book. And then in ledger we would have prepared a cash account and we would have prepared a capital account. And then in cash account we would have written on the debit side to capital amount 1 lakh, and capital account credit side by cash amount 1 lakh. This is what we would have done if we would have been doing a business as a small business. अगर अपना छोटा बिजनेस रहता था तो हमारे पास एक बुक रहता था, उसका नाम रहता था जर्नल, और दूसरा बुक रहता था उसका नाम रहता था लेजर. लेजर के अंदर अलग अलग पेज पे लेजर अकाउंट, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, ऐसा करके हम लोग एंट्री करते थे. तो फर्स्ट स्टेप इन जर्नल, सेकेंड स्टेप इन कैश अकाउंट, थर्ड स्टेप इन कैपिटल अकाउंट, ऐसा अपने हीरो को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता था. लेकिन अभी हम लोग बड़े बिजनेस में हैं, अभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. वी आर हैविंग नाउ डेडिकेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So we will say let us not handle journal. This is a cash transaction. So for cash transaction we have cash book. Cash book is a hybrid book. जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शंस को हटाता है और लेजर में से कैश अकाउंट को हटाता है. तो थोड़ा जर्नल जैसा दिखता है, थोड़ा लेजर जैसा दिखता है, थोड़ा जर्नल जैसा बिहेव करता है, थोड़ा लेजर जैसा बिहेव करता है. चलो देन लेट अस कंसिडर हाउ द एंट्री विल बी मेड. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में. सो कैश के डेबिट में जाना है, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में नहीं जाएंगे, कैश बुक के डेबिट में जाएंगे. वहाँ पे जाके लिखेंगे फर्स्ट ऑफ, दे हैव नॉट गिवन द मंथ, या दे हैव नॉट गिवन द मंथ, सो विल कंसिडर स्ट्रेट अवे फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑफ समथिंग समथिंग, डेट डाल दूंगा यहाँ पे 1 तारीख, एंड देन आई स्पेसिफाई टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज हाउ मच, 1 lakh. And then we'll write being business started with capital or being capital introduced. Okay, so first transaction is over. Second one, deposited cash into bank rupees 80,000. Deposited cash into bank. Deposited cash. What is going out? Cash is going out because we are depositing cash. So cash is going out. Where are we going the cash? We are giving the cash into the bank account. So bank account is the receiver or bank account is the receiver. That means bank account will be debited and cash account will be credited. So entry will be, अगर हमारे पास सिर्फ जर्नल रहता था तो हम लोग एंट्री कैसे पास करते थे? हम एंट्री पास करते थे जर्नल के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट because it is deposited into bank to cash account. So entry would have been बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फिर हम लोग जर्नल नाम के बुक को क्लोज करते थे, लेजर नाम के बुक को ओपन करते थे और उधर जाके बोलते थे एक कैश अकाउंट ढूंढो और एक बैंक अकाउंट ढूंढो. फिर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो टू कैश और कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय बैंक. सो 3 स्टेप में काम करना पड़ता था अगर अपना छोटा बिजनेस रहता था. तो अगर अपने पास डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड सब्सिडरी बुक्स नहीं रहते थे तो, लेकिन अभी तो अपने पास डेडिकेटेड स्पेशलाइज सब्सिडरी बुक्स है, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. हम बोलेंगे एंट्री मन में करो, एंट्री जर्नल नाम के बुक को खोल के मत करो,
मन में एंट्री करके सोचो क्या एंट्री हुआ रहेगा। फिर हम बोलते थे एंट्री हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, बैंक के डेबिट में, बैंक अकाउंट नहीं बनाया, कैश के क्रेडिट में, मतलब अपने पास कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का अपना कौन सा बुक है, कैश बुक है। डेट क्या है, 3 तारीख। कैश के क्रेडिट में जाना है तो इधर जाके लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना उसका, रुपीज़ 80,000। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, being amount deposited in bank. Okay, good, great. Next point is purchased stationery for cash rupees 2,000. Purchased stationery for cash rupees 2,000. अगर सब्सिडरी बुक्स अपने पास नहीं रहता था तो अपना राजा क्या करता था, अपना राजा चुपचाप से जर्नल नाम के बुक को खोलता था, उसके अंदर जाके एंट्री करता था। व्हाट इज एंट्री, ही वुड हैव पास्ट एंट्री। स्टेशनरी अपना खर्चा है, कैश में से पैसा जा रहा है, स्टेशनरी इज द एक्सपेंडिचर, कैश इज गोइंग आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो एंट्री विल बी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर वो जर्नल नाम के बुक को बंद करता था, लेजर नाम के बुक को खोलता था, उसके अंदर कैश अकाउंट किधर है वो ढूंढता था, उस पन्ने पे जाके, उस पेज पे जाके कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टेशनरी लिखता था और स्टेशनरी अकाउंट बनाता था, उसके डेबिट में जाके टू कैश लिखता था। ऐसा 3 स्टेप में उसको काम करना पड़ता था अगर उसके पास सब्सिडरी बुक्स नहीं रहता था तो। लेकिन क्योंकि उसके पास कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक है, जो एक हाइब्रिड बुक है, जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शंस को उठाता है, लेजर में से कैश अकाउंट को उठाता है और थोड़ा जर्नल थोड़ा लेजर ऐसा फीचर्स को मिक्स करके ये कैश बुक बन जाता है। तो बोलेगा सर अभी जर्नल को मारो गोली, उधर देखो ही मत, डायरेक्टली कैश बुक में जाना। स्टेशनरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, स्टेशनरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाने के बजाय कैश बुक के क्रेडिट में जाएंगे और कैश बुक के क्रेडिट में क्या करेंगे हम लोग, 5 तारीख को एंट्री करेंगे 2,000 रुपीज़ का बाय स्टेशनरी। 5 तारीख को एंट्री करेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद बाय स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट कितना उसका, रुपीज़ 2,000। बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कैश परचेसेस रुपीज़ 15,000। फिर से एक बार फट से मन में सोचेंगे, अगर अपने पास सब्सिडरी बुक नहीं रहता था तो हम जर्नल नाम के बुक को खोलते थे, उधर जाके क्या बोलते थे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेसेस 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 टू कैश टू कैश टू कैश, ऐसा एंट्री हम करके आते थे परचेसेस के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में, ऐसा पोस्टिंग भी करके आते थे। तो यहाँ पे लिखते थे हम लोग जर्नल के अंदर परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर लेजर नाम के बुक के अंदर जाते थे, उधर कैश अकाउंट नाम का अकाउंट ढूंढ के निकालते थे, उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस लिखते थे, फिर उसी लेजर नाम के बुक में परचेसेस का अकाउंट ढूंढते थे और परचेसेस के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में टू कैश लिखते थे। ऐसा 3 स्टेप में काम करना पड़ता था। लेकिन क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड बुक है जिसका नाम है कैश बुक, जो जर्नल में से कैश ट्रांजैक्शन को उठाता है, लेजर में से कैश अकाउंट को उठाता है, दोनों को मिक्स करके बाद में अपना कैश बुक बना लेता है, तो बोलूँगा परचेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाने का नहीं है, कैश के क्रेडिट में इसका मतलब कैश बुक के क्रेडिट में जाना है। कैश बुक के क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम लोग, बाय परचेसेस। अमाउंट कितना उसका, रुपीज़ 15,000। 7 तारीख है, एक लाइन छोड़ के लिखो भैया। बाय परचेसेस अकाउंट बीइंग परचेसेस मेड, और यू कैन से बीइंग गुड्स परचेस। अमाउंट कितना था, 15,000। नाउ सम स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, उनका दिमाग बराबर चलता रहता है, उनको कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें याद आती रहती है। वो फट से बोलेंगे सर आपने बोला था गुड्स का ट्रांजैक्शन रहेगा,
तो उसके लिए कैश बुक यूज़ नहीं करते, उसके लिए कुछ तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज डे बुक, सॉरी परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 बुक्स रहते हैं। उसमें तो कोई तो एक अकाउंट यूज़ करने, एक बुक यूज़ करने का रहता है। तो सर ये परचेसेस है, इसका मतलब अपने को परचेस अकाउंट को यूज़ करना है, मतलब अल्टीमेटली परचेस बुक को यूज़ करना है। आपने कैश बुक को कैसे यूज़ किया? मैं बोलूँगा शाबाश मेरे बच्चे, तुझे बराबर से सब याद है कि गुड्स का अगर अकाउंट रहेगा तो वी आर इक्वल टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स लाइक परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन से बुक को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि वो गुड्स के ट्रांजेक्शन कौन से रहने चाहिए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहने चाहिए। अगर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स रहेगा तो परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अगर कैश ट्रांजेक्शन रहेगा तो हम लोग परचेस बुक, सेल्स बुक को हाथ नहीं लगा सकते हैं, अपने को कैश बुक के अंदर ही आना पड़ता है। दैट्स वाई वी आर कमिंग इन कैश बुक। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। गुड्स का ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ है। ऊपर तो स्टेशनरी था, अभी गुड्स का आ गया था। स्टेशनरी को कैश बुक में लाने के लिए किसी को टेंशन नहीं आएगा, लेकिन गुड्स को कैश बुक में लेके आने को टेंशन आ सकता है, और वो जायज़ है। मैं कुछ गुस्सा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कैसे दिमाग चलाया करके, बराबर है, शाबाश, दिमाग चल रहा है तुम्हारा, लेकिन थोड़ा सा संभल के खेलना भैया। ये गूगली बॉल है, गुड्स का ट्रांजैक्शन है, लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं वो? गुड्स कैसा वाला? कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता था तो श्योर शॉट आपको बराबर बोल रहे हो, आपको कहाँ पे जाना पड़ता था? चुपचाप से परचेज बुक के अंदर ही जाना पड़ता था। कैश बुक के अंदर आना मना था, अलाउड नहीं था। लेकिन क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है, दैट्स वाई वी आर कमिंग इन कैश बुक, वी आर नॉट गोइंग इन द परचेज बुक। परचेज बुक मीन्स क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स देन परचेज बुक। दिस इज कैश परचेस ऑफ गुड्स, सो कैश बुक। क्लियर? चलो ठीक है, वेरी नाइस। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। चलो फटाफट से, डिस्काउंट 2 तरीके का रहता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं हैं, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब अपने को 8% वाले ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने का नहीं है, लेकिन उसको माइनस करके जो अपने को इनवॉइस प्राइस मिलेगा उसको यूज़ करने का है। तो पहले मैं ढूंढ के निकालता हूँ उसका कौन सा प्राइस चाहिए अपने को? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000 है। अभी अपने को कौन चाहिए? डिस्काउंट चाहिए, माइनस फ्रॉम दैट ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 8% है। मैं बोलूँगा कैसे कैलकुलेट करने का 8%? 20,000 मतलब 100 है, तो पहले 10 मतलब कितना कैलकुलेट करो? 10 कैसे कैलकुलेट करने का? लास्ट का एक जीरो कैंसिल, मतलब कितना हो गया? 2,000 हो गया। और बाद में एक कैलकुलेट करो, एक कैसे कैलकुलेट करने का? 2 जीरो कैंसिल मतलब एक कैलकुलेट होता है, तो 2 जीरो कैंसिल क्या मतलब कितना आएगा? 200 आएगा, और एक बार 200 आएगा, मतलब 2,000 में से अपने को 200 और 200 माइनस करना है। सर माइनस क्यों करना है? क्योंकि अपने को 8% पे जाना है और हम लोग 10% पे खड़े हैं। 10% पर से 8% के पास जाने का मतलब 2% अपने को कम करना पड़ेगा, तो मतलब अपने को 200 और 200 मतलब 400 कम करना पड़ेगा। तो 2,000 में से 400 कम किया मैंने, माइनस किया मैंने मेरे बच्चों, इसका मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा 1,600 रुपया। विल हैव टू कंसिडर 1,600 रुपीज़। कहते भी क्या सांगितलं ते? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वो चलो फिर 1,600 रुपये यहाँ पे आने वाला है, तो 1,600 रुपये का क्या है? तुम्हारा डिस्काउंट है, तो दिस आई एम गोइंग टू कंसिडर हियर। लिस्ट प्राइस 20,000, डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 8% मतलब 1,600। 20,000 मायनस 1,600, 20 मधनं एक गेला म्हणजे 19 मधलं 600 गेले म्हणजे उरले किती? 18,400। सो ये ट्रांजैक्शन कितना रुपये का है? 18,400 का ट्रांजैक्शन है। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। 20 minus 1 is equal to 19, 19,000 minus 600 is equal to 18,400. So it's 18,400 and it is sale of goods for cash. सर गुड्स मतलब सेल्स बुक, शाबाश, बड़ा होशियार बच्चा है। गुड्स को देख रहा है, लेकिन आगे भी तो देख मेरे राजा, आगे भी तो देख मेरी रानी, क्या बोलता है प्रॉब्लम? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश है, इसका मतलब सेल्स बुक के पास जाने का नहीं। परचेज बुक, सेल्स बुक के पास तभी जाने का जब वो ट्रांजैक्शन गुड्स का है प्लस वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट नेचर का है। ये ट्रांजैक्शन गुड्स का है क्या? हाँ, लेकिन क्रेडिट नेचर का है कि कैश नेचर का है? कैश वाला है, मतलब इसको सेल्स बुक में जाने का नहीं है, इसको कैश बुक में ही आना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ॲट 8% ट्रेड डिस्काउंट ₹20,000. 20,000 से 8% झालेले आहेत, म्हणजे झाले किती? 1,600. सो 20,000 मायनस 600 मतलब 18,400. ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग अमाउंट इज गोइंग टू बी 18,400. 20,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 1,600 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वाई? Because trade discount is never recorded in books of accounts, list price is never recorded in books of accounts, so we must consider only the invoice price, that is 18,400. So the entry will be for rupees 18,400.
देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, सर एंट्री क्या आएगी, लेकिन सेल ऑफ गुड्स बोला है, तो गुड्स आर कमिंग नहीं, गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, गुड्स आर गोइंग आउट मतलब कंसिडर करना पड़ेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैश इज कमिंग इन मतलब क्या करना पड़ेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अपने को क्या करना पड़ेगा रे, अपने को एंट्री करना पड़ेगा कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स आर गोइंग आउट टू सेल्स अकाउंट, फिर जर्नल को बंद करो, लेजर को ओपन करो, लेजर में जाओ, कैश के डेबिट में टू सेल्स लिखो और सेल्स अकाउंट ढूंढो, उसके क्रेडिट में जाके बाय कैश ऐसा लिखो। ऐसा सब कुछ करना पड़ता था, ऐसा सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन हम तो सब्सिडरी बुक वाले निकले, हमारे पास तो स्पेशलाइज बुक्स है। मैं बोलूँगा फिर जर्नल को मारो गोली, कैश ट्रांजैक्शन मतलब सीधा कैश अकाउंट के डेबिट में मत जाना, कैश बुक के डेबिट में जाना, कैश बुक के डेबिट में जाके लिखना टू सेल्स। डेट क्या है 8th, 8 तारीख को जाऊंगा डेबिट साइड में, एक लाइन छोड़ के टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना है 18,400, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर 8% TD, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर 8% TD, TD म्हणजे काय, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹5,000, so entry will be insurance premium account debit to cash account, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम के डेबिट में वो तो ठीक है, लेजर में जाऊंगा, कैश के क्रेडिट में इसके लिए मैं लेजर के अंदर नहीं जाऊंगा, कैश मतलब यहाँ पे कैश अकाउंट के बजाय कैश बुक बन जाएगा, कैश बुक के क्रेडिट में लिखूंगा बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट इज ₹5,000। 10th, एक लाइन छोड़ के बाय इंश्योरेंस अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम paid, being insurance premium paid, and amount is how much rupees, 5,000. खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, पेड कैश टू दीक्षित ₹10,000, पेड कैश टू दीक्षित ₹10,000, दीक्षित अकाउंट नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सन है मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया, सो दीक्षित अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, and cash is going out, credit what goes out, so to cash account, दीक्षित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दीक्षित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दीक्षित के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में, कैश बुक के क्रेडिट में 12 तारीख, कैश बुक के क्रेडिट में 12 तारीख, बाय दीक्षित अकाउंट, अमाउंट इज ₹10,000, being amount paid or being cash paid. Next part, received cash from Saxena ₹80,000, received cash from Saxena ₹80,000, so Saxena is the giver and cash is coming in, Saxena is the giver, cash is coming in, Saxena account पर्सनल अकाउंट, Saxena को क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज क्रेडिट द गिवर, कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सक्सेना अकाउंट, डेट इज 15th, टू सक्सेना अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड, and what is the amount received from Mr. Saxena? 80,000. Now some of you may get confused. सर आपने बोला था सक्सेना इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो सक्सेना को क्रेडिट दे दो, लेकिन आपने तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है सर, ये सिंपल कैश बुक का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। मैं बोलूँगा मेरे राजा ज़रा ठीक से देख, हमने कैश बुक को डेबिट किया है, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में टू सक्सेना, तो सक्सेना का अकाउंट जो रहेगा जो लेजर नाम के बुक में है उसके क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय कैश, सक्सेना को क्रेडिट दे दो मतलब सक्सेना के अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखो,
कैश को डेबिट दे दो मतलब कैश का अकाउंट, नहीं तो कैश का बुक, कैश का अकाउंट अगर छोटा बिजनेस रहेगा तो, नहीं तो कैश का बुक, डेडिकेटेड बुक्स वाला बड़ा बिजनेस रहेगा तो, जिस पर सब्सिडरी बुक्स है उसके डेबिट साइड में जाके लिखो टू सक्सेना। सो सक्सेना को क्रेडिट मतलब सक्सेना नाम के अकाउंट को क्रेडिट, और कैश को डेबिट मतलब कैश नाम के अकाउंट को डेबिट। फिर जिसको डेबिट देने का है उसको पूछना पड़ेगा कि किसकी वजह से डेबिट दे रहे हो, सक्सेना की वजह से डेबिट दे रहे हो, और सक्सेना के क्रेडिट में लिखेंगे किसकी वजह से क्रेडिट दे रहे हो, कैश की वजह से क्रेडिट दे रहे हो। आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। सक्सेना के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय कैश, और कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू सक्सेना। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, next point is received commission rupees 2000, received means cash is coming in and party's name is not given, they have given the reason क्या अपना commission मिल गया है, इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा that commission is my income, entry will be cash is coming in, debit what comes in cash account, debit, commission is my income, credit my income and gain, so commission account credit, entry will be cash account debit to commission account। 17th को एंट्री करना है, 17th to commission account being commission received, and what is the amount, 2000, next point, due for domestic use rupees 4000, drew, what is the meaning of drew? Drew is a past tense of what, draw. Sir, drawing for domestic use rupees 4000, what is the meaning of that? It means withdraw, they have used a short form drew, so they are basically talking withdrew rupees 4000 for domestic use, so they are withdrawing money for domestic use, domestic मतलब household, घर के काम। सो बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया है, घर पे जा रहा है, घर से बिजनेस में आएगा तो कैपिटल, बिजनेस से घर पे जाएगा तो ड्राइंग्स, घर से बिजनेस में आया तो कैपिटल, बिजनेस से घर पे गया तो ड्राइंग्स, इसका मतलब दिस इज अ ट्रांजेक्शन फॉर ड्राइंग्स। हाउ मच कैश इज गोइंग आउट, रुपीज 4000। वेयर इज इट गोइंग आउट फ्रॉम, इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द कैश बॉक्स, सो कैश बॉक्स इज द गिवर, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट what goes out, cash account will be credited and drawings account will be debited, entry will be drawing account debit to cash account, amount is rupees how much, 4000 on 18th by drawings account being cash withdrawn, अमाउंट कितना है तुम्हारा, अमाउंट रुपीज 4000। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर रुपीज 5000, फर्नीचर इज गोइंग आउट, सोल्ड गोइंग आउट, फर्नीचर इज गोइंग आउट, कैश इज कमिंग इन, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश के डेबिट में, फर्नीचर के क्रेडिट में, कैश के डेबिट में मतलब कैश बुक के डेबिट में, कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर रुपीज 5000। 22nd, being furniture sold, amount is rupees 5000। next, paid salary to Ram rupees 6000, paid salary to Ram, sir Ram को पैसा मिल गया, Ram is the receiver and cash is going out, I'll say yes, but at the same time they have told you the reason for payment, earlier we had paid to Mr. Dixit at that time, कितना कौन सा 12 तारीख था, on 12th they have told paid cash to Dixit rupees 10,000, but they did not tell us the reason, so we said okay Dixit is the receiver, cash is going out. Now here also they are telling you the name of the person to whom the money is paid, it is paid to Ram, so you may feel that sir Ram is the receiver, cash is going out, instead of Dixit अभी राम लिख देंगे काम खत्म, मैं बोलूँगा नहीं राजा, दीक्षित के टाइम देने का कारण क्या था, पर्पस क्या था नहीं बोला था, अभी तुमको पर्पस बोला हुआ है, पर्पस इज फॉर सैलरी, तो सैलरी इज आवर एक्सपेंडिचर एंड कैश इज गोइंग आउट, so entry will be salary account debit to cash account. Whenever any transaction affects one personal account, one nominal account and one real account, and the transaction is done by you on your own behalf,
not on behalf of somebody else, then personal account goes in narration and real account and nominal account go in the entry. So I'll have to consider the entry for salary account debit to cash account. अमाउंट इज रुपीज 6000. सैलरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. सैलरी के डेबिट में मतलब सैलरी अकाउंट के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में. सो कैश बुक के क्रेडिट में लिखूंगा 6000. तारीख क्या है तुम्हारा 25, डेट इज 25th. बाय सैलरी अकाउंट बीइंग सैलरी paid to Ram, being salary paid to Ram, amount is rupees 6000. Next, received interest rupees 4000. Received interest, received cash is coming in, debit what comes in, cash account debit, interest is our income, credit all incomes and gains, interest account credit, entry will be cash account debit to interest account. कैश के डेबिट में, इंटरेस्ट के क्रेडिट में. कैश के डेबिट में मतलब कैश बुक के डेबिट में. कैश बुक के डेबिट में क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट अकाउंट रुपीज 4000. डेट इज 30. टू इंटरेस्ट अकाउंट रुपीज 4000. being interest received. So here we complete all the transactions. Now what are we supposed to do? We are supposed to take the total. चलो फटाफट से चेक कर लेते कितना था. अगर 1 लाख प्लस 18 प्लस 80 मतलब इधर 1,98,000 के आसपास चला गया. 2 लाख हो गया. 2,05,000, 2,05,000 प्लस 4 मतलब 2,09,000. काफ़ी बड़ा अमाउंट है. 2,09,400 के आसपास अमाउंट रहेगा डेबिट साइड का. क्रेडिट साइड चेक कर लो. 80 प्लस 2 मतलब कितना, 82 प्लस 15 मतलब कितना 97, 97 प्लस 5 मतलब अराउंड 1,02,000, 1,02,000 प्लस 10 1,12,000, 1,12,000 प्लस 4 एंड 6 मतलब 1,12,000 प्लस 10, that comes to 1,22,000. So it seems that debit side is heavy, credit side is lighter. It is better to take the total on debit side first. Now my format is little short because I need to take the total and I need to write the balance also. तो मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आपके पास तो जगह है, there is no difficulty. चलो देन लेट स्टार्ट. लेट मी टेक दी टोटल. यहाँ पे क्या रहे 0, 400, 400, 400, 400, 400. ठीक है ठीक है ठीक है. लेट मी टेक दी टोटल हियर 400. ओके, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है. फिर 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 4 19. तो यहाँ पे आ गया 19. कैरी फॉरवर्ड एक और एक 2, 2 और 8 10, 10 10 10 10 10 10 10. कैरी फॉरवर्ड एक और एक 2. सो इट्स 2,09,400. ओके, 2,09,400 इज द टोटल. which we are taking it here also. Let us find out the balance. कितना अमाउंट है, 0 0 सब 0 0 0 0. अपने को 400 चाहिए है. इसका मतलब यहाँ पे 400 ही आएगा क्योंकि 0 में 4 ऐड किया तो 4 होता है. ओके, तो कैरी फॉरवर्ड तो कुछ है नहीं. नेक्स्ट, बाद में 0 2 2 प्लस 5 मतलब 7 प्लस 5 मतलब 12, 12 प्लस 10 मतलब 22, 22 अपने को 9 चाहिए है. 22 प्लस 7 मतलब 29. कैरी फॉरवर्ड 2. 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, 12 12 12 अपने को 20 करना है. 12 प्लस 8 मतलब 20 होता है. सो 87,400 रुपीज़ इज़ द बैलेंसिंग फिगर. इसको मैं स्क्वायर बॉक्स कर देता हूँ. डेट रहेगा लेट अस से 30th. वी डोंट नो विच मंथ इट इज़ बिकॉज दे हैव नॉट गिवन द मंथ. बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 87,400 और टोटल के नीचे अगले महीने का 1 तारीख लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 87,400. Once you write all these different things, then your answer is complete. So here we have completed
द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ सिंपल कैश बुक. लेट अस नाउ क्विकली कंसिडर थर्ड क्वेश्चन. अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा. आई वॉन्ट यू टू क्विकली कैप्चर द स्पीड विथ मी. अगर डर गए, कंफ्यूज हो गए, तो वीडियो को पॉज करने का, एक बार सोचने का, फिर से सॉल्व करने का. ओके, मेरे पास तो सोल्यूशन रेडी रहेगा, आपको व्हाट्सएप से चेक करने का है. और फिर भी अगर कुछ डाउट आया तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. इट विल बी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स. नेक्स्ट देखो कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन सिंपल कैश बुक ऑफ कमल ट्रेडर्स 2018 अगस्त. ओके, सो दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग अगस्त ऑफ 2018. अगस्त मतलब 8th मंथ. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त इज द 8th मंथ. ओके, दे हैव गिवन अस डिफरेंट थिंग्स. सबसे पहले क्या दिया है? कैश इन हैंड. In the previous question it was business was started, they brought in capital. Here they are not bringing in capital, they are telling you cash is in hand, already there in the cash box. business बहुत पहले से चालू था. And at the beginning of this financial year, which will be on 1st of April, or at the beginning of this month, which is on 1st of August, we already have the cash of rupees 37,400 lying in the cash box of the business. तो सर ये अपना एसेट है कि लायबिलिटी? ऑब्वियसली अपना एसेट है, बिजनेस के लिए ये एसेट है. तो इन द बुक्स ऑफ कौन तुम्हारा? ये कमल ट्रेडर्स. इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स अपने पास एसेट है. एसेट मतलब डेबिट बैलेंस, एंड डेबिट बैलेंस ओपनिंग डेट का है. ओपनिंग मतलब सीधा साधा, क्लोजिंग मतलब उल्टा पुल्टा. मतलब मुझे करना पड़ेगा चुपचाप से डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,400. ओके, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,400. एक तारीख है 1st of August 2018 था ना? यस, 2018. यस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन amount is 37,400. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. सर नरेशन ओपनिंग बैलेंस को लिखने की जरूरत नहीं रहती है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन को करने का रहता है. सो नॉट टू वरी. कैश रिसीव्ड फ्रॉम साक्षी रुपीज़ 25,000. कैश रिसीव्ड फ्रॉम साक्षी रुपीज़ 25,000. कैश इज कमिंग इन. साक्षी इज द गिवर. सर वो अपने को पर्पज मालूम रहेगा तो नॉमिनल अकाउंट कम्स इन एंट्रीज, पर्सनल अकाउंट गोज इन नरेशन. शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हो. But they have not told you the reason for which Sakshi is paying you. So we'll have to consider Sakshi account. We cannot consider any nominal account. Entry will be Sakshi is the receiver and cash is going out. Entry is Sakshi account debit to cash or bank. Cash is coming in and Sakshi is the giver. Sakshi is not the receiver. Cash received from Sakshi hai. So cash is coming in. Sakshi is the giver. I'm repeating for the last time. I don't want any confusion. Cash received बोला है. Cash is coming in. Sakshi is the giver. Entry will be cash account debit to Sakshi account. कैश के डेबिट में, साक्षी के क्रेडिट में. कैश के डेबिट में मतलब कैश बुक के डेबिट में. कैश बुक के डेबिट में 4 तारीख को टू साक्षी. कैश बुक के डेबिट में 4 तारीख को टू साक्षी अकाउंट. अमाउंट कितना है तुम्हारा? रुपीज़ 25,000. बीइंग कैश रिसीव, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कैश परचेसेस रुपीज़ 25,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस. लिस्ट प्राइस कितना है? 25,000 है. ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया है? 12% दिया है. सो 25,000 का 12% अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं बोलूँगा 25,000 का पहले 10% निकालो. लेट 25,000 बी 100. उसका 10% निकालने का, लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 2,500 होगा. अपने को कहाँ पे जाना है? अपने को 12% पे जाना है. मतलब अपने को और एक बार 1% और एक बार 1%, ऐसा 2 बार 1% ऐड करना पड़ेगा. 100% का 1% कैसे निकालने का? लास्ट का 2 जीरो कैंसिल. सो 25,000 में से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, मतलब 250 ले लिया. दैट कम्स टू 500. दिस इज 500 एंड दिस इज 500. सर ऐड करने का कि लेस करने का? ऐड करने का. नहीं सर, पिछले प्रॉब्लम में लेस किया था. अरे मेरे राजा, अरे मेरी रानी, उन्होंने अपने को तभी 8% बोला था, यहाँ पे 12% बोला है. तो 10 से 8 पे जाने का तो 2 माइनस करना पड़ता है, और 10 से 12 पे जाने का तो 2 ऐड करना पड़ता है. इसके लिए ऐड कर रहा हूँ.
एकदम सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन है नहीं. सो आई एम कंसिडरिंग 2500 प्लस 500 मतलब 3000. 3000 क्या है? 3000 डिस्काउंट का अमाउंट है बाबा लोग, डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस. सो 25,000 में से 3,000 माइनस किया, बच गया कितना? 22,000. सो द आंसर इज 22,000 इनवॉइस प्राइस. आंसर इज 22,000 इनवॉइस प्राइस. एंट्री क्या हो जाएगा तुम्हारा? दे हैव टोल्ड यू कैश परचेसेस. परचेस गुड्स आर कमिंग इन. नहीं सर, परचेस मतलब परचेस बुक. कैश परचेस है. क्रेडिट परचेस होता था तो हम लोग श्योर शॉट क्या कंसिडर करते थे? क्रेडिट परचेस होता था तो हम लोग श्योर शॉट उसको परचेस बुक में लेके जाते थे. ये कैश परचेस होने की वजह से परचेस बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो कैश परचेसेस ₹25,000 एट 12% डिस्काउंट, मतलब अपने को 22,000 का एंट्री करना है. परचेसेस मतलब गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट. कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट. सो परचेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. परचेस के डेबिट में क्या लिखोगे? टू कैश. वो तो नहीं बनाया मैंने. कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय परचेसेस. तारीख क्या है? 5th of August. By cash account. Amount is how much? 22,000. Being goods purchased at what? 12% TD na? At 12% TD. Being goods purchased at 12% TD. Next point. Invested in shares rupees 25,000. Invested in shares rupees 25,000. We are making investment. Investment is our asset. Shares are coming in. Debit what comes in. Real account है, asset मतलब real account है. So entry will be investment account debit. And cash is going out, credit what goes out, so to cash account. Entry will be investment account debit to cash account. Investment के debit में, cash के credit में. कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में. सो कैश बुक के क्रेडिट में लिखूंगा बाय इन्वेस्टमेंट. अमाउंट कितना? 25,000. डेट क्या है? 8 तारीख है. 8 तारीख एक लाइन छोड़ने के बाद बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अमाउंट इज हाउ मच? रुपीज 25,000. being investment made in shares. Full stop. Being investment made in shares. Next point. Paid for sundry expenses rupees 3,000. Paid for sundry expenses rupees 3,000. Sundry expenses is our expenditure. Sundry expense account debit. Cash is going out, credit what goes out, so to cash account. Entry will be sundry expenses account debit to cash account. Amount rupees 3,000. 10th को एंट्री करना है सन्ड्री एक्सपेंसेस के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. कैश के क्रेडिट में 10 तारीख. ओ सन्ड्री एक्सपेंसेस के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में बोला है, तो कैश के क्रेडिट में बाय कैश नहीं आएगा मेरे बच्चों. कैश के क्रेडिट में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस आएगा. बीइंग एक्सपेंसेस पेड. बीइंग एक्सपेंसेस पेड. अमाउंट कितना उसका? रुपीज़ 3,000. अमाउंट है रुपीज़ 3,000. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस? सन्ड्री मीन्स छोटा मोटा, सब कुछ एक साथ कर दिया तो उसको बोलेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस. सो कभी कभी तुम बोलोगे सर आज मैं क्या किया था, आज का दिन भर का खर्चा क्या है? वो सब मिला के खर्चा. मैं कॉलेज को गया और रिक्शा से गया था, बस से आया, थोड़ा चाय पिया, वहाँ पे कुछ बड़ा पाव खा लिया, जो भी कुछ आपके कॉलेज में कैंटीन में अच्छा मिलता है वो खा लिया, फिर एक पेन परचेस किया था. सब छोटे छोटे खर्चे हैं. तो बोलूँगा सब मिला के मेरा आज का खर्चा कितना था? से मे भी 150 रुपया. मैं बोलूँगा शाबाश. तो सब मिला के खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस. क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? सन्ड्री मीन्स ऑल एंड सन्ड्री, एवरीथिंग टेकन टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज सन्ड्री एक्सपेंसेस. ओके.
Next part, paid life insurance premium rupees 8,000. Paid life insurance premium rupees 8,000. Now this is a tricky point. They have told life insurance premium. They have not told on whose life the premium is paid. If the life insurance premium is paid on the life of the employees, so I am the businessman, I am having lots of different employees. Some of the employees are very important for me. मैं बोलूँगा I will pay for your life insurance premium. So if the businessman is paying for the life insurance of his employees, then we can say it is expenditure. It is as good as salary. But if the businessman is paying on the life insurance for his own life, then it is not an expenditure. Then he should have paid for his own life from his personal pocket. It is his personal expenditure. It is not his business expenditure. That means it should be considered as drawings. So they have not yet told us whether this life insurance premium is for the employees or the life insurance premium is for the employer himself. If it is for employees, it will become expenditure. If it is for employer, it will become drawings. So they are silent about it. So we will assume that it is paid by him for his own life. That means it will be treated as drawings. एम्प्लॉयर के लाइफ पे इंश्योरेंस पे करने का जिम्मेदारी बिजनेस का नहीं है. एम्प्लॉयर के लाइफ पे इंश्योरेंस पे करने का जिम्मेदारी उसका खुद का है. उसका खुद का मतलब उसके घर का जिम्मेदारी है. घर का जिम्मेदारी बिजनेस ने पे किया. द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर पेड बाय द बिजनेस. इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स. सो एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ड्रॉइंग्स के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स. डेट क्या है? 12. अमाउंट कितना? 8,000. डेट क्या है? 12. अमाउंट कितना है? 8,000. बीइंग LIP पेड. LIP मतलब क्या? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके. नेक्स्ट point is received dividend rupees 2,000. Received, cash is coming in. Dividend is our income. Entry will be cash is coming in, debit what comes in, cash account debit. Dividend is our income, credit all incomes and gains, dividend account credit. Cash account debit to dividend account. कैश के डेबिट में, डिविडेंड के क्रेडिट में. 16 तारीख है. टू dividend account. Amount is 2,000. Being dividend received. Okay. Next point. Paid telephone bill rupees 6,000. Telephone bill is an expenditure, a debit all expenses and losses. Telephone bill account debit. Cash is going out, credit what goes out, so to cash or bank account. Entry will be telephone bill account debit टू कैश और बैंक अकाउंट. टेलीफोन बिल के डेबिट में, कैश और बैंक के क्रेडिट में. टेलीफोन बिल के डेबिट में वी कैन नॉट शो इट बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड टेलीफोन बिल अकाउंट, बट वी हैव प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट. नहीं सर, कैश बुक. शाबाश, बड़ी अच्छी बात. सो कैश बुक के क्रेडिट में लिखूंगा बाय टेलीफोन चार्जेस. डेट कितना है? 20 तारीख. अमाउंट कितना है? 6,000. 20 तारीख को बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा तुम्हारा? रुपीज 6,000. बीइंग टेलीफोन चार्जेस और टेलीफोन बिल पेड. बीइंग टेलीफोन चार्जेस और टेलीफोन बिल पेड. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 1,000. रिसीव्ड, cash is coming in, debit what comes in, cash account debit. Interest is our income, credit all incomes and gains, so to interest account. Entry will be cash account debit to interest account. कैश के डेबिट में, इंटरेस्ट के क्रेडिट में. कैश के डेबिट में मतलब कैश बुक के डेबिट में. कैश बुक के डेबिट में क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट. कैश बुक के डेबिट में लिखोगे टू इंटरेस्ट. अमाउंट कितना? 1,000. डेट क्या है? 22. टू इंटरेस्ट अकाउंट. अमाउंट कितना? रुपीज 1,000. बीइंग इंटरेस्ट रिसीव.
Next point, cash sales rupees 25,000 at 20% trade discount. Cash sales rupees 25,000 at 20% trade discount. So we'll have to again check the same thing. What have they told you? 20% trade discount बोला, 20% बाबा लोग बेबी लोग. Let me consider the calculation here. Just a minute. क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करने के मुकाबले ये थोड़ा अलग हो जाता है रब करने के लिए. हाँ चलो ठीक है. एंट्री क्या बोला उन्होंने? 25,000 लिस्ट प्राइस है. 25,000 लिस्ट प्राइस है एंड 20% TD बोला हुआ है. मैं बोलूँगा 25,000 मतलब 100. तो 10 मतलब कितना, 10 मतलब कितना, मतलब 20 मतलब कितना. सो 10 मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 2,500 लेना पड़ेगा. फिर से एक बार 2,500 लेना पड़ेगा. अपने को 20 करना है मतलब ऐड करना पड़ेगा. मतलब ये 5,000 हो जाएगा. मतलब ये 5,000 हो जाएगा. फिर माइनस करके लिखूंगा 20,000. कोई कोई बच्चों को टेंशन आता है, सर आपने बोला ऐड करने का रहता है और फिर यहाँ पे माइनस किया. मैं बोलूँगा राजा 10% कैलकुलेट किया था लेकिन 20% पे जाना था, तो 10% में 10% ऐड किया तो 20% मिल जाएगा. बट 20% क्या है? 20% ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस से माइनस करने का है. वो तो अपना बचपन का फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या था? LP माइनस TD इज इक्वल टू IP माइनस CD. CD मतलब क्या था? कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड. ये अपना बहुत बचपन का फॉर्मूला है. जर्नल के टॉपिक में सिखा के रखा था मैंने, तो वही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. डिस्काउंट हमेशा माइनस करने का है. डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करते वक्त ज़रा संभल के, क्योंकि हम लोग 10% से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने को आगे जाना है कि पीछे जाना है देखना पड़ता है. उसके हिसाब से एडलेस करना पड़ता है. तो अपने को एंट्री कितने का करने का? 20,000 का एंट्री करना है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो 20,000 का एंट्री है. एंट्री इज कैश सेल्स. कैश इज कमिंग इन एंड इंटरेस्ट इज आवर इनकम. कैश इज कमिंग इन, इंटरेस्ट इज आवर इनकम. एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. कैश के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट. कैश के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट 25 तारीख. ओ टू सेल्स है ना, इंटरेस्ट का वर्किंग नहीं करना अपने को. कैश सेल्स बोला है, सो टू सेल्स. कैश का डेबिट से आएगा टू सेल्स, बिकॉज ये एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा अपना? 20,000. बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 20% TD. बीइंग गुड्स सोल्ड एट 20% TD. ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट. पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ 4,500. ओके, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल. कैश इज कमिंग इन और कैश इज गोइंग आउट. कैश इज गोइंग आउट, सो कैश इज गोइंग आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट. एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल इज आवर एक्सपेंडिचर डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड लॉसेस. इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट. इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इलेक्ट्रिसिटी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में. कैश के क्रेडिट में मतलब कैश बुक के क्रेडिट में. कैश बुक के क्रेडिट में 28 तारीख को, कैश बुक के क्रेडिट में 28 तारीख को बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट. अमाउंट कितना अपना? 4,500. बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड. बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड. काम खत्म. Let us consider next point. There are no more transactions. That means we are going to go for totaling and we are going to find out the balancing figure. So they are having 37,425,000. 37 plus 20 मतलब 57. 57 plus 5 मतलब 62. 62 plus 2 मतलब 64. 65. ये 85 हो गया. मतलब डेबिट साइड लगभग 85 के ऊपर नीचे है. 85 400 के आसपास रहेगा. क्रेडिट साइड में 22 plus 25 मतलब कितना हो गया? 20 plus 20 मतलब 40. 40 plus 7 मतलब 47. 50. 58. 58 और ये कितना रे? 10 मतलब 68. और ये अपना डेबिट साइड में 80 के आसपास चला गया था ना. सो दैट इज गुड फॉर अस. नो प्रॉब्लम. दैट मीन्स आई थिंक वी कैन गो फॉर डेबिट साइड टोटल ऑन बोथ द साइड्स. सो लेट मी टेक द टोटल अगेन. 400 का 400 लिख दो मेरे बच्चों. होशियार बच्चे मेरे, बहुत अच्छा पढ़ाई करने वाले मेरे बच्चे. 400 लिख दिया. फिर 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15. 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15. तो
तो 15 को यहाँ पे ले लिया मैंने, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 2 8, सो आई कैन टेक इट 8 हियर। 85,400 डेबिट में ले लिया, 85,400 डेबिट में ले लिया। Let us find out a balancing figure. Balancing figure will be on 31st of August. By balance carried forward. अपने को 400 चाहिए बाबा लोग नीचे अल्टीमेटली। देखो इधर कितना रहे, 0 0 0 0 0 500। 500 के आगे 400 कब आएगा? 500 के आगे 400 नहीं आता है। 500 के आगे अभी 400 किधर मिलेगा? 1400 के अंदर मिलेगा। तो 500 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5 + 9 4, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू कंसिडर हियर 9। तो अभी आगे चला गया, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 8 + 3 11, 11 + 8 19, 19 + 6, 19 + 6 मतलब 25, 25 + 4, 25 + 4 मतलब कितना हो गया? 29, 29 के आगे 5 कहाँ पे आएगा? 35 में आएगा। 29 + 6 35, कैरी फॉरवर्ड 3, 3 + 2 मतलब 5, 5 + 2 मतलब 7, 7 7 + 1 मतलब 8, so it will be 16,900 is the balance which I am bringing down on 1st of September 2018 as 2 balance brought down। और एक छोटा सा काम अपना बाकी है, क्लोजिंग बैलेंस को क्या करते हैं हम लोग? पेंसिल से बैलेंस के लिए सर्कल नहीं तो स्क्वायर कर देते हैं। कंप्लीट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड 2 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। नाउ इन टुमारोज, नॉट ऑन टुमारो बट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज मंडेज लेक्चर, आई विल बी डिस्कसिंग डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें डेबिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे, कैश एंड बैंक, और क्रेडिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे, कैश एंड बैंक। सो द कॉलम्स विल बी लाइक दिस, डेट रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, रिसीट नंबर, LF, बाद में एक डेबिट अमाउंट नहीं रहेगा बल्कि इधर एक रहेगा डेबिट अमाउंट ऑफ कैश एंड डेबिट अमाउंट ऑफ बैंक। फिर क्रेडिट साइड में फिर से एक बार डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, क्रेडिट अमाउंट ऑफ कैश, क्रेडिट अमाउंट ऑफ बैंक। ऐसा बड़ा वाला चीज़ हम करने का कोशिश करेंगे। इट विल हेल्प अस रादर देन हैविंग वन सिंपल कैश बुक एंड अनदर सिंपल बैंक बुक, विल हैव वन सिंगल बुक कॉल्ड एज कैश एंड बैंक बुक, दैट इज कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। तो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को आएगा, तब तक ये सारा का सारा ठीक से देख लो, ठीक से सॉल्व करो और मंडे को मुझे मिलो। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।